A very good morning, everyone. A warm welcome to today's discussion of The Hindu and Indian Express. My name is Yasmin Gill. So let us begin. The topics that we'll be covering today are places in news, then we'll be talking about Super El Nino predicted for this year, rights of grazing communities, compensatory afforestation, National Security Act, United Nations Convention on Law of Seas, Kashmir tourism industry, privilege motion and model code of conduct, Thrissur Puram, this is a festival in Kerala. Then we have Sabrimala and related Supreme Court order. Finally, we'll be taking up certain miscellaneous topics. So let us begin. First of all, we have Bab al Mandeb Strait. So the simple issue to understand is Muslims across the world, they are divided into Sunnis and Shias. Maximum, that is 90% of the population in the world is Sunnis. Certain countries, for example, Iran, which has been in news recently, is a Shia country. Now, here we have, in our West Asian region, we have the country Yemen. In Yemen, we have a prevalent group known as Houthis. These Houthis are Shia people and they have the support of Iran as well. So Iran-backed Yemen Houthis, they have also entered the war and they have launched their attack on Israel. Now, because of their entry into the war, this area, Bab al Mandeb, becomes important. This water body which I'm pointing to is our Red Sea. Then we have our Bab al Mandeb Strait here. And this is your Gulf of, this down under here is Gulf of Aden. So your Bab al Mandeb Strait is between Red Sea and your Gulf of Aden. Then Yemen's capital is Sana'a, which is located close to Bab al Mandeb Strait. And Bab al Mandeb Strait is also known as Gate of Tears in Arabic. Bab al Mandeb Strait, it connects Red Sea area to your Gulf of Aden, which also becomes a part of Indian Ocean. This particular region accounts for 10 to 12% of global oil and natural gas shipments. Then आप यहाँ पे एक एरिया देखोगे, this particular area of Africa, इसको हम बोलते हैं Horn of Africa. This pointed region, it is known as Horn of Africa. यहाँ की countries important है. A very simple acronym to remember is it SEED. SEED में है हमारे पास Somalia, then we have Ethiopia, Eritrea and Djibouti. So these are the 4 countries which make up a part of Horn of Africa. आगे चलते हैं. There was a UPSC prelims question in 2024 related to Red Sea. So you can just go through this question. We won't be solving it. My point is, see, ये वाला जो एरिया है ना, Mediterranean, Black Sea, Red Sea, इसमें से अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं. ठीक है. So Red Sea again comes into news. Red Sea, अब वापस जाते हैं. See, I'll just point out. अगर आप zoom out करके देखेंगे, here we have our Mediterranean. Yeah, this is Mediterranean. Then we have our Black Sea and then we have our Caspian Sea, MBC, right? और ये जो नीचे है, here we have our Red Sea. This is Persian Gulf and this is your Red Sea, ठीक है? और Red Sea के नीचे है बाब अल मंदेब स्ट्रेट. पर्शियन गल्फ के नीचे है हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है? सो ये आपको ध्यान में रखना है. देन रेड सी के जो ऊपर कनाल है, दैट इज योर स्यूज कनाल. सो स्यूज कनाल आपको याद रखना है, इट इज ऑपरेटेड बाय इजिप्ट and Red Sea is surrounded by certain countries: Egypt, Sudan, Djibouti, Saudi Arabia, Yemen and Eritrea. We'll just look at these. यहाँ पे है Red Sea वाली countries. So you have Saudi Arabia यहाँ पे, ठीक है? Then we have Yemen, then we have Egypt, then आपका यहाँ पे Djibouti है, Eritrea है, ठीक है? So ये countries है. याद रखना, Ethiopia is a landlocked country. So Red Sea की bordering countries, Mediterranean की bordering countries, कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, ऑल दीज बिकम्स इंपॉर्टेंट. ये पूरा एरिया ही आपका यूपीएससी में अक्सर मैप्स में पूछा जाता है. Now we move on to see, we have been looking into certain cultural sites which were harmed during US-Iran strikes as well as Israel-Lebanon strikes. So the point is, do we have a convention? क्या कोई यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है which actually prevents कि cultural property harm ना हो? So the answer is yes. There is Hague Convention. It is of 1954. This is related to protection of cultural property. Important thing to remember is that it is not just monuments which are protected, rather works of art are also protected, manuscripts, books, ये सब भी Hague Convention में covered है. Plus it is regardless of their origin or ownership. किसकी ownership है, किसका origin है, doesn't matter. अगर cultural property है, it has to be protected under Hague Convention. Next is
हेग कन्वेंशन हैज सर्टेन एम्बलम्स. एम्बलम्स का मतलब है कि कल्चरल प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज हो सके कि ये कल्चरल प्रॉपर्टी है, इसके लिए वी हैव सर्टेन एम्बलम्स. फॉर एग्जांपल ब्लू शील्ड एम्बलम. दिस इज टू डिमार्केट, to mark a particular property as a cultural property which has been protected by Hague Convention. So ये आपका ब्लू शील्ड एम्बलम अगर आपको क्वेश्चन आता है या हेग कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इट मस्ट स्ट्राइक यू कि ये आपका कल्चरल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के साथ रिलेटेड है. एंड इसमें आपके वर्क्स ऑफ आर्ट, बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इवन मॉन्यूमेंट्स आपके कवर्ड है. सो दिस वाज अ यूपीएससी 2020 क्वेश्चन जिसमें आपका डेक्लेरेशंस या आपकी जो कन्वेंशंस है वो क्वेश्चंस में आई हुई थी. एंड फॉर एग्जांपल अल्मा आटा डेक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, तलानाउ डायलॉग, अंडर टू कोalition. तो ये जो कन्वेंशंस हैं किस चीज के साथ लिंक करती है, चाहे वो एनवायरमेंट में हो या कल्चर में हो, बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. वी हैव ड्यूगो गार्शिया इन न्यूज. सो ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया के पास यहाँ पे इंडियन ओशन है. इंडियन ओशन के आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है. हेयर वी हैव आइलैंड्स, फॉर एग्जांपल वी हैव सेचल्स, वी हैव आपका मालदीव्स, राइट. यहाँ पे आपको ना एक आइलैंड दिखेगा ड्यूगो गार्शिया. जब भी आप इसको मैप पे देखोगे इसकी ब्रैकेट में लिखा होगा इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश ओशियानिक इंडियन टेरिटरी. ठीक है. सो अब दिस पर्टिकुलर आइलैंड इट वाज लीज्ड टू यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम इन 1967. ये भी रिसेंटली न्यूज में है. क्यों? क्योंकि ईरान ने यहाँ पे 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए इन एन अटेम्प्ट कि इसको हम ड्यूगो गार्शिया को टारगेट कर सके. वाई इज ईरान टारगेटिंग ड्यूगो गार्शिया? क्योंकि यहाँ पे यूएस के 2 बॉम्बर बेसेस हैं, इसीलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में है. प्लस ये एक आपका कोरल अटॉल है. कोरल अटॉल का मतलब क्या है? अलग अलग आइलैंड्स जो है ना आपके ज्योग्राफिकली दे आर फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस. वी हैव सर्टेन आइलैंड्स व्हिच आर वोल्केनिक, सर्टेन आइलैंड्स व्हिच आर कोरल इन नेचर. सो ये जो ड्यूगो गार्शिया है it is part of a larger group of islands known as Chagos Archipelago. Archipelago word का मतलब होता है कि it is a group of islands. So Chagos Archipelago एक कोरल अटॉल है. इसकी जो फॉर्मेशन है दैट इज कोरल इन ओरिजिन. ठीक है. और यहाँ पे यूएस का आपका बॉम्बर बेस है. दिस पर्टिकुलर आइलैंड इट वाज लीज्ड टू यूएस एंड यूके इन 1967 एंड इट बिकेम अ मिलिट्री बेस इन 1986. ईयर्स याद नहीं करने, यू मस्ट नो कि किसकी कंट्रोल के अंडर ये आता है. In 2024, which is 2 years ago, UK agreed to surrender the sovereignty of Chagos Island to Mauritius while retaining control of the military base on Diogo Garcia. So Diogo Garcia का जो military base का control है, they kept it for themselves. यहाँ पे US का military base है, लेकिन जो otherwise आपकी sovereignty है वो Mauritius को hand over कर दी. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे है Mauritius. ठीक है, यहाँ पे है आपका मदागास्कर, इधर यहाँ पे आपका मालदीव्स और सेचल्स. नेक्स्ट देखते हैं. वी हैव सर्टेन गैस फील्ड्स व्हिच हैव बीन इन न्यूज. गैस के लिए जो वेस्ट एशिया का मेन रीजन है दैट इज कतर. सो वी हैव 2 गैस फील्ड्स जो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज योर साउथ पारस. ठीक है. सेकेंड इज रस लफान. ठीक है. तो ये जो साउथ पारस पर्शियन नेचुरल गैस फील्ड है ये आपकी पर्शियन गल्फ में है. जो रस लफान है ये भी आपकी पर्शियन गल्फ में है. दोनों में फर्क कितना है? द रस लफान gas field it is completely Qatar's gas field, whereas your South Paris natural gas field it is shared between Iran and Qatar. Plus South Paris is the world's largest gas field and Ras Laffan it is the world's largest liquefied natural gas hub. ठीक है. It accounts for 1/5 of global LNG supply. So एक ही दोनों gas fields आपको ध्यान में रखनी है. South Paris it is shared between Iran and Qatar and Ras Laffan this is related specifically to Qatar. Both of these are located in Persian Gulf and has been in news recently. Why? Because Israel has stuck Iran's key offshore gas fields. Then we have Litani River in news. So yesterday we were talking about Lebanon and Israel का conflict, right? Israel और Lebanon में भी conflict चल रहा है. दोनों ही countries आपके Mediterranean को border करती हैं. They are not landlocked countries. They are open. They are coastal countries open to the shore of Mediterranean Sea. सो लेबनन आपका नॉर्थ में है, साउथ में आपका इजराइल है. लेबनन एंड इजराइल के यहाँ पे आपकी एक बाउंड्री बनती है. लेबनन की लॉन्गेस्ट जो रिवर है दैट इज लितानी रिवर. इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन लेबनन. यहाँ पे यू विल ऑल्सो सी अ मेंशन ऑफ ब्लू लाइन.
सो ये जो ब्लू लाइन है ये यूनाइटेड नेशंस ने सेटअप की है टू डिमार्केट एंड सेपरेट लेबनान फ्रॉम इजराइल. Yesterday we also talked about yellow line, है ना. Yellow line that is in Gaza Strip. Here we are talking about blue line. Blue line आपकी लेबनान और इजराइल को सेपरेट करती है and Litani river is the longest and largest river in Lebanon. Then Israel Lebanon के conflict में we have two sides. The second is more important. First आप छोड़ भी सकते हो. Tyre, है ना. This particular site Tyre, it is a UNESCO World Heritage Site. It is known for its Roman era ruins. इससे ज्यादा I don't think आएगा. I have written certain points, but आपको mainly पता होना चाहिए कि ये जो तायरे आपका है, that is a UNESCO World Heritage Site and it is known for its Roman era ruins. Now we talk about the main issue, super El Nino. ये आपका geography के लिए काफी important issue है. Before we understand El Nino, आपको ये चीज समझनी है कि एल नीनो हर साल नहीं आता, विच मीन्स कि एल नीनो एक अबनॉर्मल फिनोमिना है. नॉर्मल कंडीशंस में एल नीनो नहीं आता. इट कम्स यूजुअली आफ्टर 2 to 7 years के गैप पे. सो इट इज अ अबनॉर्मल फिनोमिना. और इसीलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द नॉर्मल कंडीशंस. ओनली देन वी कैन मूव ऑन टू एल नीनो कंडीशंस. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर नॉर्मल कंडीशंस. तो ये आपका पैसिफिक ओशन का मैप है एंड यहाँ पे आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है. टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक एंड टुवर्ड्स द वेस्टर्न एंड ऑफ पैसिफिक वी हैव आवर ऑस्ट्रेलिया. नाउ अब अगर आप विंड सिस्टम देखोगे पूरे अर्थ का, देयर आर सर्टेन विंड्स, फॉर एग्जांपल मॉनसून विंड्स व्हिच आर सीजनल इन नेचर. हर साल हर महीने तो मॉनसून नहीं आता ना, राइट. इट इज सीजनल इन नेचर और इन विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन की साउथ वेस्ट मॉनसून है या विंटर्स में मॉनसून आ रहे हैं, ठीक है. And there are certain winds which are permanent in nature. These winds are known as trade winds. इन winds को हम क्या बोलते हैं? Trade winds. Trade winds permanent है and ये easterly winds है. जब भी हम किसी wind को बोलते हैं कि these are easterly or westerly, how do we define this? See, it is dependent on the direction of origin. तो आपकी जो easterly winds होंगी they originate from east. यानी कि ये east से originate होके west की तरफ जाएंगी. So now let's go back. If you look at our normal conditions, so normal condition में आपका जो wind का flow है that is from east to west, trade winds का. Trade winds they usually blow between 30 degree north to 30 degree south. Now due to this movement from east to west, it pushes away the warm water. Warm जो surface water होता है वो हमेशा warm होता है, उसको push कर देगा towards Australia. अब अगर सरफेस वाटर साउथ अमेरिकन कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश हो गया, विच मीन्स कि साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास वॉइड क्रिएट हो गया, ड्यू टू विच नीचे से जो ठंडा पानी है दैट कम्स अपवर्ड्स. जो डीप ओशन वाटर है विच इज कोल्डर एज कंपेयर टू सरफेस वाटर इज ब्रॉट अप. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अपवेलिंग. व्हाट इज दिस फिनोमिना नोन एज अपवेलिंग. दिस इज वेरी बेनिफिशियल. यहाँ पे एक कंट्री है विच इज पेरू, ठीक है. पेरू है साउथ अमेरिका में एक कंट्री जिसको इस अपवेलिंग के कारण काफी फायदा होता है. फिशरी इंडस्ट्री को फायदा होता है, प्लस पेरू इज अ लीडिंग कंट्री इन केस ऑफ फिश फर्टिलाइजर्स, ठीक है. सो इस वजह से दिस पर्टिकुलर फिनोमिना बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो ये आपकी हो गई नॉर्मल कंडीशंस. ट्रेड विंड्स दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू विच योर वार्म सरफेस वाटर इज ड्रिवन टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, whereas the cold deep ocean water is risen up due to the phenomena of upwelling. This leads to benefits to Peru country in its fishery industry. Now we move on to El Nino conditions. अब जिस साल में एल नीनो आता है, एल नीनो एक वेदर पैटर्न है जिसमें विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है. What happens is कि आपका जो सेंट्रल पैसिफिक है और जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक है, दिस बिकम्स वार्मर एज कंपेयर टू यूजुअल कंडीशंस. तो आपके सेंट्रल पैसिफिक में और आपके ईस्टर्न पैसिफिक में कंडीशंस ज्यादा वार्म हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू यूजुअल कंडीशंस, ड्यू टू विच द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स बिकम्स रिवर्स्ड. तो अब ट्रेड विंड्स आपकी ईस्ट टू वेस्ट की बजाय वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, ठीक है. ड्यू टू विच द नॉर्मल जो अपवेलिंग होती थी पेरू कोस्ट पे दैट डज नॉट हैपन, which leads to decline in the fishery industry है. So इसको एक बार देख लेते हैं. Trade winds are permanent easterly winds 30 degree north and south of equator. Under normal conditions,
trade winds blow from east to west, therefore they are known as easterlies, along the equator, pushing warm surface water towards Asia and allowing cold, nutrient rich water to rise near South America. The rise of this cold water is known as upwelling. एंड एल नीनो एक पार्ट है, ठीक है, इस पूरी जो ऑसिलेशन सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन और ईएनएसओ साइकिल. एल नीनो इसका एक पार्ट है. एल नीनो की एग्जैक्टली रिवर्स कंडीशंस ला नीना में एग्जिस्ट करती हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ला नीना हियर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एल नीनो हियर, ठीक है. सो अब एल नीनो इज accompanied by unusual warming of surface waters in the central and eastern tropical Pacific Ocean. Due to this warming, the trade winds they shift their direction and they become westerly. ये जो एल नीनो या लानीना की जो एपिसोड्स हैं, they typically last 9 to 12 months. And अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो एल नीनो इज मोर फ्रीक्वेंट एज कंपेयर टू लानीना, ठीक है. तो ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, एल नीनो इज मोर फ्रीक्वेंट प्लस दे यूजुअली लास्ट फ्रॉम 9 to 12 months. सो एल नीनो सबसे पहले जो पेरुवियन फिशरमैन थे दे रिकॉग्नाइज्ड इट, ठीक है. प्लस एल नीनो इज नॉट अ रेगुलर साइकिल, तभी हमने इसको क्या बोला कि इट इज एन अबनॉर्मल कंडीशन, दे आर नॉट प्रिडिक्टेबल एज वेल. ये हमें कुछ टाइम पहले ही पता चलता है, वेयर बाय आईएमडी अनाउंसेस कि इस साल शायद एल नीनो ईयर होगा, क्या इस साल शायद ला नीना ईयर होगा, ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम इट दे अकर इरेगुलरली एट 2 to 7 year इंटरवल. प्लस अगर एल नीनो का इम्पैक्ट देखें, इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट ऑन एवरी कंट्री, हर जगह पे रीजनल वेरिएशंस है. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, जब भी एल नीनो ईयर होगा इंडिया में मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून वीक होंगे ड्यू टू वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, और इसके कारण साउथ एशिया या इवन इंडिया में भी आपके ड्राउट लाइक कंडीशंस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है. सो ये आपका स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर है, के टाइम पे होता है. This year as well as the next is predicted to be witnessing super El Nino. अब super El Nino क्या है? It is just an aggravated form of El Nino conditions. In case of super El Nino, we have exceptionally strong events accompanied by a temperature hike of at least 2 degrees Celsius. कि कम से कम 2 degrees Celsius का हाइक हो above the long term average, तब हम उसको बोलेंगे कि that is a super El Nino condition. On the right side of the screen we have La Nina. इसके ऊपर एक बार यूपीएससी में 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है. सो यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू क्वेश्चन. माय पॉइंट इज कि इस तरह की जो फिनोमिना है ना, खास करके आपके इंडियन ओशन में, फॉर एग्जांपल इसी तरह आप देखोगे न्यूज़पेपर में कभी कभार आता है इंडियन ओशन डायपोल, है ना. तो इस तरह के फिनोमिना को टेक नोट ऑफ इट. ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. कोई आपका न्यू मिनरल की फाइंड है या आपका कोई न्यू वेदर फिनोमिना है, that becomes important for your exam. So ये हमारा हो गया एल नीनो कवर, वेयर बाय आपकी ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से your system of El Nino happens and this leads to drought-like conditions in our country. Then we come to grazing communities. See, एक आपका wildlife के ऊपर panel है which is asked to conduct a study regarding dependence of grazing communities in national parks and wildlife sanctuaries. So दो चीजें हैं. इंडिया में we have certain protected areas. For example, we have national parks and we have wildlife sanctuaries. ये आपके अलग अलग स्टेट्स में हैं, ठीक है. अब इनमें कुछ किसी में ग्रेजिंग राइट्स अलाउड है, किसी में ग्रेजिंग अलाउड नहीं है. So government is trying to balance the rights of these grazing communities and the rights of wildlife as well as आपका flora and fauna in these particular protected areas. तो इसको देख लेते हैं. The Standing Committee of National Board for Wildlife has directed Wildlife Institute of India to take up a comprehensive study of pastoral and nomadic communities. तो ये जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इट इज हेडेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, उसको कौन हेड करता है. इट इज हेडेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर. यूजुअली आप अगर नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटीज देखोगे, there are certain communities that you must be aware of. For example, गुज्जर्स, बकरवाल्स एंड योर मलधारीज, ठीक है. इसमें से जो गुज्जर एंड बकरवाल्स हैं, दे आर प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. दे कैरी अ एसटी स्टेटस. देन इफ यू टॉक अबाउट मालधारीज, ये भी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है.
Now, why Maldaris अक्सर न्यूज में भी आते हैं. So, if you are aware, in Gujarat region we have Gir forests, right? And Gir forest is the only surviving place of Asiatic lion. अब एशियाटिक लायन के साथ को एग्जिस्टेंस में ये मालधारी कम्युनिटी रहती है, ठीक है. सो देयरफॉर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम, अगर न्यूज में ग्रासलैंड्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को हम ग्रासलैंड बोलते हैं. सो आपके ना सी यूपीएससी प्रेपरेशन इज कंप्लीटली ड्रिवन बाय योर क्यूरियोसिटी. सो यू मस्ट बी क्यूरियस इनफ कि अच्छा अगर ये टर्म आई है न्यूज़पेपर में तो इसका मतलब क्या होगा. हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं, हम डेजर्ट्स पढ़ते हैं, है ना. तो इनका कोई क्राइटेरिया होता होगा टू डिफाइन अ पर्टिकुलर एरिया एज अ ग्रासलैंड और टू डिफाइन अ पर्टिकुलर एरिया एज अ डेजर्ट और अ फॉरेस्ट, राइट. So this is dependent on your rainfall patterns. So if you talk about grasslands, they are terrestrial ecosystems in which the annual rainfall falls between 25 centimeters and 150 centimeters. तो जो आपकी grasslands है ना, they are a sort of transition area between your deserts and forests. ठीक है. इन्हीं communities के साथ there is another term which becomes important, which is transhumans. अब सिंपल सी बात है, अगर आप माउंटेन पीक्स देखोगे, नेचुरली इन केस ऑफ विंटर्स द पीक्स विल बिकम स्नो कवर्ड या स्नो क्लैड, राइट. तो ये आपका ग्रेजिंग के लिए भी काम नहीं आएंगी, प्लस वेदर कंडीशंस भी हार्श हो जाएंगी. सो ये जो आपकी नोमैडिक कम्युनिटी है, पेस्टोरल कम्युनिटीज, खास करके हिली रीजन्स में, दे एक्चुअली टेक अप अ वर्टिकल माइग्रेशन एज पर सीजन. सो समर्स में क्या होगा, ऊपर वाले एरियाज स्नो क्लैड नहीं होंगे, देयरफॉर दे विल गो अपवर्ड्स. Whereas winters में ऊपर वाले एरियाज स्नो क्लैड हो जाएंगे, therefore they come downwards. तो ये जो आपकी vertical migration है, this is referred to as transhumance. It is seasonal and it is conducted usually by these Gujjars and Bakarwals. So they migrate from the plains in winter to high altitude areas in summers. अब क्योंकि इस पर्टिकुलर पैनल ये एग्जामिन कर रहा है कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज में ग्रेजिंग राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, सो यू मस्ट नो द डिफरेंस कि किस में परमिशन है और किस में परमिशन नहीं है. यूजुअली जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, दे आर मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एज कंपेयर टू योर वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज. इसीलिए नेशनल पार्क्स में ग्रेजिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, whereas in case of your wildlife sanctuaries, certain grazing rights are allowed, but with the permission of chief wildlife warden. ठीक है, so that it doesn't harm your wildlife there. So national parks में अक्सर आपके rights काफी strictly protected होते हैं, इसीलिए यहाँ पे grazing allowed नहीं होती. Wildlife sanctuaries में grazing allowed होती है with the condition that permission must be taken from chief wildlife warden. So आपकी right side पे there is this question. In the grasslands, trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of, ठीक है. सो माई पॉइंट इज कि डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, फॉरेस्ट के टाइप्स हो गए, है ना. फॉरेस्ट के टाइप्स भी आपकी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. कौन सी एरियाज में कौन से फॉरेस्ट हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा आप ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज कवर करेंगे, बाय द एंड ऑफ ईयर यू विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड. ठीक है. नेक्स्ट इज, इसी आर्टिकल में एक कन्वेंशन डिस्कस की गई थी, विच इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन. सो यूएनसीसीडी, वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वेंशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं. कन्वेंशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वेदर इंडिया इज अ सिग्नेटरी, ठीक है, एंड इफ एनी मेजर कंट्री इज आउट ऑफ दिस कन्वेंशन, ये ध्यान में रखना है, एंड व्हाट दिस कन्वेंशन रिलेट्स टू. So your UN Convention to Combat Desertification, this was introduced by the recommendations of a very popular environmental summit, which is 1992 Rio Summit. रियो एक शहर है ब्राजील में, यहाँ पे 1992 में एक बहुत पॉपुलर समिट हुई थी, which is known as Rio Earth Summit. As per the efforts of this summit, this convention came up. It came up in 1994. It was adopted in 1994 and entered into force in 1996. इंडिया भी इसको सिग्नेटरी है. ठीक है. सो अगर आपको क्वेश्चन है कि इज इंडिया सिग्नेटरी, यस. एंड इंडिया डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया हुआ है दैट बाय 2030 वी विल एक्चुअली बी रीस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड. सी अब अगर आप डेजर्टिफिकेशन देखोगे ना,
इसको आप ऐसा ही मत समझो कि डेजर्टिफिकेशन सिर्फ आपका लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से होता है. अगर कोई डेजर्टिफिकेशन का सिंपल मतलब है द लैंड इज नो लॉन्गर प्रोडक्टिव फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड टू सस्टेन एग्रीकल्चर. दिस कुड कम अप ड्यू टू सैलिनिटी कंडीशन. सैलिनिटी किसी एरिया पे ज्यादा है तब भी डेजर्टिफिकेशन हो सकती है. माइनिंग के इम्पैक्ट्स के कारण भी वो लैंड इनफर्टाइल रेंडर हो सकता है. ठीक है, सो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल. ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक बात की गई है कि इंडिया विल बी रीस्टोरिंग 26 million hectares of degraded land by 2030 in order to meet its land degradation neutrality target. तो ये भी न्यूज में रहता है LDN. व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप लैंड रिसोर्सेज को उतना ही यूज करो जिससे कि आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो हैम्पर ना हो, फूड सिक्योरिटी आपकी स्टेबल रहे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. आगे चलते हैं. सो ये आपका PYQ है रिगार्डिंग UN कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. नेक्स्ट, इसी आर्टिकल में एक टर्म मेंशन थी, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन. सो व्हाट डज इट मीन? अगर आप वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन विच मीन्स यू आर डूइंग एफॉरेस्टेशन बट इट इज एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन. व्हाट डज इट मीन? सी, अगर कोई लेटेस्ट से कि कोई इंडस्ट्री है या कोई कंपनी है किसी पर्टिकुलर फॉरेस्टेड लैंड पैच को कट डाउन करके या डिफॉरेस्ट करके वहां पे अपना प्रोजेक्ट लगा रही है, एज अ कॉम्पेंसेशन इट हैज टू टेक अप एफॉरेस्टेशन इन सम अदर एरिया, इन सम अदर लैंड पैच. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट अलग से एक फंड बनाती है, नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, एज वेल एज सच अ फंड इज ऑल्सो क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ स्टेट. सो ये जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन अथॉरिटी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under Compensatory Afforestation Fund Act of 2016. फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए अगर डाइवर्ट हो रहा है तो हमें एफॉरेस्टेशन करनी है. एंड हाउ वाज दिस एस्टैब्लिश्ड? बाय द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अ फेमस केस, TN गोलावर्मन केस. प्लस ये कौन से एक्ट के अंडर होती है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. ठीक है, एंड ये जो नेशनल कंपेंसेटरी फंड है इसका 90% फंड स्टेट को अलोकेट किया जाता है, 10% इज केप्ट बाय द सेंटर इटसेल्फ टू एंश्योर बेटर ओवरसाइट. प्लस आप पॉलिटी में पढ़ोगे हम अलग अलग टाइप के फंड्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. इसी तरह से एक फंड है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. तो ये जो आपका नेशनल कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. अब अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन आता है कि इज कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन अ सक्सेसफुल मॉडल, सो वी हैव प्रोज एंड कॉन्स हियर. अगर आप कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन देखोगे ना, यूजुअली कंपनीज टेक अप कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, बट द प्रॉब्लम इज कि जो नेचुरल फॉरेस्ट कंडीशंस है और जो नेचुरल फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है वो न्यू एरिया में मेंटेन नहीं हो पाती. यूजुअली या तो मोनोकल्चर यानी कि एक ही तरह की ट्रीज प्लांट कर दी जाती हैं, प्लस इवन जो ट्रीज प्लांट की जाती हैं वो इंडिजिनस नहीं होती, दे आर एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ फ्लोरा. ठीक है, तो इस वजह से भी आपका कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में दिक्कत आती है. नेक्स्ट इज इसके जो फंड्स हैं वहां पे भी डाइवर्जन है. थर्ड इज कि आपका जो न्यू लैंड है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, जिस वजह से उसकी मैनेजमेंट करनी भी मुश्किल हो जाती है. सो दीज आर सर्टन एरियाज वेयर बाय कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन अंडरगोज सर्टन प्रॉब्लम्स. यहाँ पे आप एक टर्म देखोगे, ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग आपका काफी जगह यूज होता है. ठीक है, सो ग्रीन वॉशिंग आपका जब रिच फॉरेस्ट को हम कमर्शियल प्लांटेशन के साथ रिप्लेस कर देते हैं एंड उसको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दिस इज द नेचुरल फॉरेस्ट, दिस इज व्हाट इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग. देन ये आपका साइड पे इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग है. सो हाई कोर्ट डिनाइज रिलीफ टू मैन हेल्ड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. सो हेडिंग में आपको काउ स्लॉटर वगैरह कुछ इशू नहीं पड़ना, आपको बस इतना ध्यान में रखना है व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंडिया का एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है जो कि 1980 में आया था, 1980 में. एज पर इट अलाउज सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स to detain individuals
विदाउट फॉर्मल चार्जेस और ट्रायल्स। सो देखो, ये भी एक स्पेशल सर्कमस्टांस है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन देखोगे, whenever a person is arrested or detained, the person has to be given the grounds for his arrest as well as the right to bail, plus there has to be a legal counsel available for that person, and most importantly that person has to be produced before कोर्ट विद इन 24 hours। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल डिटेंशन के अंडर। लेकिन जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का फिनोमिना है, यानी कि आप किसी को शक के बुनियाद पे प्रिवेंटिव मेजर लेके आप किसी को डिटेन कर रहे हो। देयरफॉर अगर आप लास्ट 3 लाइंस देखोगे, सो अंडर एनएसए पहली बात आपकी जो नॉर्मल राइट्स हैं दे आर सस्पेंडेड, यू डोंट हैव टू गिव अ रीजन, एज वेल एज NSA allows detention without disclosure of reason for up to 10 days। और ओवरऑल डिटेंशन अगर आप देखोगे, बिना चार्ज के 12 महीने तक आप किसी इंडिविजुअल को डिटेन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल पर्टेनिंग टू NSA। We have 10 days without disclosing the reason for arrest, and overall detention can be 12 months without applying a particular charge। देन आपका यूएस के और ईरान के कंफ्लिक्ट के विद रिगार्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी हैज बिकम इम्पोर्टेंट। ये आपकी 1982 की कन्वेंशन है। सो इसको देख लेते हैं। सी द आइडिया इज वेरी सिंपल। आप ये डायग्राम देखो, आपको सी इसमें क्या किया गया है कि आपके वाटर्स पे राइट्स किसी कंट्री के किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट इज व्हाट दिस कन्वेंशन टॉक्स अबाउट। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, लैंड के पास एक बेस लाइन सेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलर ये जो लाइन है ना, ये आपकी एक बेस लाइन सेट कर ली। इससे अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, जैसे हम रोड्स पे या लैंड पे किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर बॉडीज वी हैव नॉटिकल माइल्स, इन 1 नॉटिकल माइल इज रफली इक्वल टू 1.8 किलोमीटर्स। सो ये वाला जो एरिया है बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज रेफर टू एज टेरिटोरियल सी। एक ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा, बेसलाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है दैट इज रेफर टू एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे मेन पता होने चाहिए। सो आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक वी हैव टेरिटोरियल सीज, एंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो पहले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देख लेते हैं। Even if we just break down the term exclusive economic zone, which means a particular state has the right to economic resources in this particular area that is up to 200 nautical miles। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो हाँ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कोई और भी कर सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन की बात करोगे, दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड उसकी बेसलाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक। देन टेरिटोरियल सीज है। ठीक है, प्लस आपका इंडिया भी इसकी एक स्टेट पार्टी है। हर स्टेट का जो उसकी इंटरनल वाटर्स है उस पर तो कंप्लीट सॉवरेनिटी रहती है। जो टेरिटोरियल सीज है वो आपके 12 नॉटिकल माइल्स तक आते हैं। ठीक है, सो ये आपको कुछ एरियाज ध्यान में रखने हैं, स्पेशली EEZ। EEZ के बियॉन्ड का एरिया आपका हाई सीज का एरिया होता है। कश्मीर हैज कम इनटू न्यूज़ बिकॉज पहलगाम को आपका नियरली 1 ईयर हो गया है। सो टूरिज्म इंडस्ट्री एज वेल एज योर पीर पंजाल रेंज हैज कम इनटू न्यूज़। सो अगेन क्यूरोसिटी वाली बात है ना। सो यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म्स, गुलमर्ग, सोनमर्ग। जब भी आप देखो, इट मस्ट बेसिकली लीड यू टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये मर्ग क्यों यूज हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो मर्ग्स बेसिकली दे आर हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स आपके डिफरेंट तरीके के होते हैं। अगर आपके माउंटेनियस एरियाज पे ग्रासलैंड्स हैं, दे आर नोन एज मोन्टेन ग्रासलैंड्स और हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन ग्रासलैंड्स। एंड ये जो मर्ग हैं ये इसी का ही एक फॉर्म है। पॉपुलर एग्जांपल्स बीइंग गुलमर्ग एंड सोनमर्ग। वेयर आर दीज लोकेटेड? यूजुअली इन द पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। अगर आप हिमालयाज देखोगे, हिमालयाज की 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। जो सबसे ऊपर है दैट इज योर आउटर हिमालयाज, देन वी हैव योर मिडिल हिमालयाज, एंड लास्ट पे आपका है शिवालिक्स। ठीक है, एंड आउटर हिमालयाज की आपकी हाइट सबसे ज्यादा है। ये जो पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंजेस है दे आर इन योर मिडिल हिमालयाज। इवन इफ यू लुक एट द मैप, आपका सबसे पहले है
ग्रेटर हिमालयन रेंज, यहाँ पे है पीर पंजाल और आपका धौलाधर, एंड फाइनली वी हैव योर शिवालिक शेर, ठीक है। सो ये जो आपके ग्रासलैंड्स है, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में दे आर नोन एज बुग्याल्स, वेस्टर्न घाट्स में दे आर नोन एज छोलास, एंड इन हिमाचल प्रदेश दे आर नोन एज खजियार्स। नेक्स्ट न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर द कांग्रेस पार्टी दैट इज योर ऑपोजिशन, इट हैज मूव्ड अ प्रिविलेज नोटिस। अगेन जैसे हमने कल डिस्कस किया, ये जो आपकी पॉलिटी की टर्म्स है बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रिविलेज नोटिस, हु कैन मूव इट, व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस आर वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो सी पार्लियामेंट के मेंबर होने के साथ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गेट्स टू प्रिविलेजेस, वन इज एट द इंडिविजुअल लेवल, द सेकेंड इज एट द कलेक्टिव लेवल। कुछ प्रिविलेजेस होती हैं इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ होती हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है। अब अगर आप पार्लियामेंट की मेंबरशिप देखोगे, व्हेन वी स्टडी इंडियन पार्लियामेंट वी से कि इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन है कि क्या प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं? सो द आंसर इज नो, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट। व्हाई? Because see, his or her privileges are provided for in a separate article, that is article 361. So जो आपके पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं उसमें प्रेसिडेंट कवर नहीं होते, ठीक है। नाउ एवरी हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कब हुई है, प्लस इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशिंग दैट पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। व्हाई हैज प्राइम मिनिस्टर कम इनटू न्यूज? ये जो आपका डिलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन बिल चल रहा है, सो प्राइम मिनिस्टर मेड कमेंट्स की आपका दिस ऑपोजिशन इज बेसिकली ट्राइंग टू डू अ फीटीसाइड, ठीक है, भ्रूण हत्या बोला उन्होंने। सो देयरफॉर आपका जो आइडिया है प्रिविलेजेस का, दैट हैज कम इनटू न्यूज। देन वी हैव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्यों न्यूज में आया? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने इस टाइम ऑपोजिशन को टारगेट किया। सो ऑपोजिशन का कहना है बिकॉज इलेक्शंस आर ड्यू इन सर्टेन स्टेट्स एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ, तभी आपका एक दूसरे को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट डिस्ट्रॉयज और पुट्स अ बार ऑन योर पब्लिक परसेप्शन, ठीक है। सो अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इफ यू लुक एट योर पीवाईक्यू, 2022 में एक पीवाईक्यू आया था, दिस वाज इन योर मेंस, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज अ स्टैट्यूटरी बैकिंग? जैसे हमने डिलिमिटेशन कमीशन का देखा था, है ना, कि इट हैज अ स्टैट्यूटरी बैकिंग। लेकिन अगर आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसके पीछे कोई लीगल फोर्स या आपकी लीगल बैकिंग नहीं है, सो देन द क्वेश्चन बिकम्स कि फिर इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लागू करता है? इट इज एप्लीकेबल एज पर आर्टिकल 324, जिसमें इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरिटेंडेंस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज इट कम इनटू इफेक्ट? जब भी आपको इलेक्शंस देखोगे ना, बिफोर दैट आपका एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन कमीशन आपका मीटिंग देते हैं। सो एज सुन एज योर इलेक्शन स्केड्यूल इज अनाउंस्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट अप टू द पॉइंट व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लीकेबल। जब से शेड्यूल अनाउंस हो गया से लेके जब तक आपके रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हो जाते तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका एप्लीकेबल रहता है। व्हाई इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देयर? सी, आपका इस टाइम पे ना तो कोई नई गवर्नमेंट स्कीम आ सकती है, ना ही आप ज्यादा एक दूसरे को टारगेट कर सकते हो, रीजन बीइंग कि हम पब्लिक परसेप्शन को किसी तरह से मॉडिफाई नहीं करना चाहते, ठीक है। सो दिस इज व्हाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन न्यूज। साउथ इंडिया में केरला में देयर इज अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल, त्रिशूर पूरम। अब फेस्टिवल्स आपके कल्चर का पार्ट है। कुछ फेस्टिवल्स बिकम स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन दोज फेस्टिवल्स एंड इसकी वजह से आपका एनिमल राइट्स का इशू उठ जाता है। सर दीज काइंड ऑफ फेस्टिवल्स आर ऑल्सो प्रेवलेंट इन तमिलनाडु, ठीक है। सिमिलरली केरला में त्रिशूर पूरम है। त्रिशूर पूरम इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स, मदर ऑफ ऑल पूरम्स। इट इज अ टेम्पल फेस्टिवल, देयर इज यूजेज ऑफ एलिफेंट्स in a very large scale यहाँ पे, ठीक है। and this particular festival it was initiated by महाराजा of कोच्चि, राजा राम वर्मा। ये फैक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू मस्ट बी अवेयर कि त्रिशूर पूरम कौन से स्टेट में होता है। एक आपके लिए साइड न्यूज है, ये इट इज नॉट पर्टेनिंग टू टुडेज एक्सप्रेस बट दिस वाज अ न्यूज लास्ट ईयर।
सो इफ यू नो, सितार के एक रिनाउंड प्लेयर थे पंडित रविशंकर, राइट? सो उनकी डॉटर अनुष्का शंकर, she tied up with PETA India. PETA India is basically People for Ethical Treatment of Animals. So इन्होंने क्या किया कि क्योंकि एलिफेंट्स का यहाँ पे काफी ज्यादा अब्यूज हो रहा था, therefore she gifted a mechanical elephant to be used at this particular festival. Such kind of examples can be used in your environment as well as your ethics paper. ठीक है, अगर आपको permissible है, धक्के से भी नहीं ड्रॉप करना है, अगर आपका फिट बैठ रहा है वहां पे, ओनली देन गो फॉर इट. ठीक है. देन सबरीमाला हैज अगेन कम इनटू न्यूज. ये केरला का टेम्पल है जिसमें वुमेन की एंट्री इन अ सर्टेन एज ग्रुप विच इज द मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप इज बैंड. सो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे इट हैज टेकन अप टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26. ये दोनों आर्टिकल्स ना आपके फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अंदर आते हैं आपके आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26. आर्टिकल 25 और 26 में कभी कभार कंफ्लिक्ट रहता है एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. लेकिन ना ये आर्टिकल कोई भी फंडामेंटल राइट इंडिया में एब्सोल्यूट नहीं है. When we talk about the nature of fundamental rights, so they are not absolute fundamental rights, conditional है. तो इसके ऊपर कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं होगा कि रिलीजन के नाम पे आप सती स्टार्ट कर दोगे, या रिलीजन के नाम पे आप दलित्स को टेम्पल्स में एंट्री नहीं दोगे. ठीक है. सो बेसिकली द आइडिया इज कि अगर सोशल रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, देन द स्टेट कैन इंटरवीन इन द प्रैक्टिसेस. अदरवाइज फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको अलाउड है. देन वी कम टू आर्टिकल 26. अगर वो इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 26 जो है ये कलेक्टिव राइट को आपका प्रोटेक्ट करता है. कलेक्टिव राइट किसका? किसी पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन का, कि अच्छा ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो इनको अपने अफेयर्स मैनेज करने का खुद से राइट है, टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एज वेल एज टू मैनेज देयर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. ठीक है. नाउ सी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन कि इफ वी अलाउ आर्टिकल 25 का अगर हम ओपनली यूज अलाउ कर दे, दैट मीन्स कि कल को तो ये रिलीजियस ग्रुप्स दे बैन अदर पीपल फ्रॉम कमिंग इनटू देयर टेंपल्स, राइट? फॉर एग्जांपल दे कैन बैन लोअर कास्ट पीपल, दे कैन बैन वुमेन फ्रॉम एंटरिंग देयर टेंपल्स. देयरफॉर आपको आर्टिकल 25 और 26 को बैलेंस करके चलना है. ठीक है. सबरीमाला टेंपल हैज बीन इन यूज अदरवाइज आल्सो. सो सबरीमाला का ये जो टेंपल है, इट इज डिवोटेड टू लॉर्ड अयप्पा. हु इज लॉर्ड अयप्पा? सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी. Who is Mohini? Mohini is the female form of Vishnu. इसीलिए if अगर आप केरला में क्लासिकल डांसेस भी देखोगे, we have मोहिनी अट्टम, बिकॉज इस एरिया में जो आपका फीमेल फॉर्म ऑफ विष्णु है, इनकी काफी पूजा होती है. एंड अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा इज द सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी. दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग राजाशेखरा. रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए किंग राजाशेखर ने बनाया. एंड सी व्हाई इज द वुमेन एंट्री नॉट अलाउड है? बिकॉज इनके जो प्रिसाइडिंग डिटी है Lord Ayappa, he basically practiced celibacy throughout his life. So इसीलिए इस टेम्पल में जो वुमेन की एंट्री है in a certain age group is not allowed. Then president has launched certain projects in रोरकेला. रोरकेला आपका ओडिशा में है. आपके ज्योग्राफी का एक टॉपिक है योर रिसोर्सेस, इंडिया में भी और आपके वर्ल्ड में भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए विच कंट्रीज आर फेमस फॉर देयर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, फॉर देयर मिनरल रिसोर्सेज. ठीक है. सो धीरे धीरे कवर कर लेंगे ओवर योर ईयर, राइट? सो रोरकेला आपका जो ओडिशा में है, दिस इज बेसिकली फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट. दिस स्टील प्लांट, जैसे जब हमने इंडिया में पीएसयूज लगाना स्टार्ट किए थे, वी टुक फॉरेन हेल्प, राइट? सो डिफरेंट पीएसयूज आपके डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प से एस्टैब्लिश हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो आपका रोरकेला स्टील प्लांट है, ये आपका जर्मनी की कोलैबोरेशन के साथ एस्टैब्लिश हुआ एंड इट इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर. हर प्लांट की जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. हर प्लांट की जो लोकेशन है इज डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो स्टील प्लांट है, दे आर स्पेसिफिकली डिपेंडेंट अपॉन कि आसपास आयरन, कोल अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन कि आपका रॉ मटेरियल पास में अवेलेबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल्स है ना, अगर शुगर मिल्स शुगर केन की जगह से दूर हैं,
that will result into loss of your sugar content. ठीक है, तो इस तरह से लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. तो यहां पे प्लांट क्यों लगा? क्योंकि बिल्कुल पास में आयरन ओर है. आपका सुंदरगढ़ और क्योंझर ये आपका ओडिशा में ही है. देन कोल है झरिया इन झारखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. ठीक है, देन पानी भी अवेलेबल है, कोयल एंड शंख रिवर्स. ठीक है, सो ये धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा इन एरियाज का इफ यू आर न्यू टू द सब्जेक्ट, राइट. There are very short news and good news as well. Fossil based power has declined. So this decline has been seen globally. Two important countries, China and India, दोनों में fossil का consumption decline हुआ है. And China is the largest fossil producing country, whereas fossil based electricity producing country, and India comes at the third position. So इन दोनों countries में decline होने के कारण overall fossil based power में decline आया. Yesterday was National Civil Services Day, observed on 21st April every year, dedicated to civil servants, first celebrated in 2006. Why? To commemorate Sardar Vallabhbhai Patel, who was the first home minister, because he addressed civil servants on this particular day at Delhi. He actually referred to civil servants as the steel frame of India. इसी न्यूज में आपके गवर्नेंस के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है. हम ना जैसे यू हैव टू बी फेमिलियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद सर्टेन टर्म्स जिसको आप आपके आंसर्स में ड्रॉप कर सकते हो. सो हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग की. रादर देन ट्रेनिंग, स्टार्ट यूजिंग वर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया था, जिसके अंडर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, आईजीओटी कर्मयोगी. It is a digital platform to build capacity of your civil servants. तो ये इसी का पार्ट था. Then भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल, अगेन इन न्यूज. सो ये क्या है? वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो हमारी शिपिंग रूट्स हैं और जो शिपिंग इंडस्ट्री है हैज कम अंडर आपका इसको इंश्योरेंस वगैरह का इशू रहता है, बिकॉज इट कैन बी टारगेटेड, राइट. सो आपका जो गवर्नमेंट है, इट हैज कम अप विद अ न्यू पूल, भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल. अमाउंट कितना है याद नहीं रखना, इट इज एक्चुअली 12,980 crores. व्हाट यू मस्ट नो हियर इज क्या क्या चीज कवर्ड है, किस किस टाइप के वेसल्स कवर्ड है. इफ यू लुक एट द कवरेज, सो इट कवर्स योर हल. हल आपका बेसिकली ये जो आपका शिप का बॉडी होता है ना, दैट इज नोन एज हल. देन मशीनरी, कार्गो, इन केस ऑफ योर वॉर एंड इंडेमनिटी. प्लस ये जो आपकी स्कीम है, इट इज अ डोमेस्टिक स्टेट बैक्ड इंश्योरेंस मैकेनिज्म. दिस विल कवर इंडिया फ्लैग्ड वेसल, इंडिया कंट्रोल्ड वेसल, एज वेल एज इंडिया बाउंड वेसल. अगर कोई फॉरेन वेसल भी इंडिया की तरफ आ रही है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम. बाल्टिक सी न्यूज में था. सो ये जो आपके है ना, मेडिटेरियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, बाल्टिक सी, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट. देयर बॉर्डरिंग कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट. इन हर सीज के ओपनिंग क्लोजिंग पे जो स्ट्रेट्स हैं आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो ये वाला जो एरिया है आपका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देन वी हैव योर डेनमार्क हियर. दीज आर बेसिकली रेफर टू एज नॉर्डिक कंट्रीज. इनको क्या बोला जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज. ठीक है, सो यहाँ पे आपके कुछ गल्फ्स हैं. वी हैव योर गल्फ ऑफ बोथनिया हियर एंड वी हैव योर गल्फ ऑफ फिनलैंड हियर. ठीक है, बाल्टिक सी जो है, इट इज ब्रैकिश इन नेचर. ब्रैकिश क्या होता है? सलीन और फ्रेश वाटर के बीच में. ठीक है, तो इसकी सैलिनिटी ना तो प्रॉपर सलाइन रिवर, सलाइन ओशंस की तरह है, ना ही आपके फ्रेश वाटर रिवर्स की तरह है. ठीक है, इट्स समवेयर इन बिटवीन. प्लस सी इसमें भी ना देयर इज दिस टॉपिक इन ज्योग्राफी, आपका सैलिनिटी वाटर बॉडीज की. तो आपको ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है कि इन वाटर बॉडीज को आप सैलिनिटी के हिसाब से रैंक करो. इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन. आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या वो सी या आपकी जो वाटर बॉडी है, इज इट लैंडलॉक्ड? पहली चीज ये. दूसरी, क्या उसमें रिवर्स का फ्लो है? ठीक है, ज्यादा. अगर रिवर्स का फ्लो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में ज्यादा होगा तो उसकी सैलिनिटी नेचुरली ड्रॉप कर जाएगी. अगर आप बाल्टिक सी देखोगे, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी. इट्स वाटर सैलिनिटी लेवल्स आर लोअर. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर. सराउंडिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, स्वीडन, फिनलैंड, देन वी हैव एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क एंड इवन रशिया. ठीक है, सो ये हो गया आप हमारा
आपका आपका पीपीटी का कवर. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू न्यूज़पेपर. ओके, सो लेट्स टेक अप द न्यूज़पेपर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट. सो आपका वन ऑफ द न्यूज वाज कि आपका पहलगाम को 1 ईयर हो गया, ड्यू टू विच देयर वर सर्टेन एडिटोरियल्स एंड हाउ द जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी लैंडस्केप हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इस इशू को हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इट. आइडिया इज कि जो आपके टेररिस्ट ग्रुप्स पहले अर्बन बेस्ड प्लेटफॉर्म से आपका टेररिस्ट अटैक किया करते थे, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू जंगल वॉरफेयर और अ मोर डिस्पर्स्ड एरियाज. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अर्बन सेंटर से टुवर्ड्स अ मोर डिस्पर्स्ड इंटेलिजेंस ग्रिड फॉर्म करनी पड़ी. देन पीर पंजाल रेंज इज इंपॉर्टेंट, कि हमने कल डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम इट जो कुछ चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, वन ऑफ इट इज ये वाला चीज है ना. सो अभी क्या है कि ये जो हमारी फॉरेस्ट जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे आर शिफ्टेड द अप्रोच फ्रॉम होल्डिंग द रोड टू होल्डिंग द रिज. वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हमारी बड़ी विजिबल ओरिएंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहती थी, रोड सेंट्रिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहती थी. नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स एरियाज दैट वर लेस मॉनिटर्ड अर्लियर. तो इस चीज को आप ऐसे ऐसे ही टर्म ड्रॉप कर सकते हो, फ्रॉम होल्डिंग द रोड टू होल्डिंग द रिज. रिज बेसिकली क्या होता है, जो आपके माउंटेन टॉप एरियाज होते हैं, दे आर नोन एज योर रिजेस. ठीक है, जो आपके पॉइंटेड एरियाज होते हैं माउंटेन्स पे. सो वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम होल्डिंग द रोड टू होल्डिंग द रिज. स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन डिप्लॉयमेंट. देन सी दूसरी बात है यहाँ पे कि जो हमारे नॉर्मल टूरिस्ट गाइड्स हैं, पोनी हैंडलर्स हैं, इनकी भी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो रही है, प्लस इवन क्यूआर कोडेड आइडेंटिफिकेशन हो रही है. ठीक है, व्हाई इज दिस सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? दिस इज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क्स. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही ना आपको, या इस पर्टिकुलर वर्ड पे आपको मेंस में ना एक बार पीवाईक्यू आया था. सो अभी ना आप जब भी एडिटोरियल पढ़ते हो, यू डोंट हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर एरिया. जैसे अगर आप ये टर्म पढ़ रहे हो ओवरग्राउंड वर्कर, जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च की व्हाट डज ओवरग्राउंड वर्कर मीन. तो ये जो पर्टिकुलर आपका मेंस का क्वेश्चन था, इट आस्क्ड यू सर्टेन सॉल्यूशंस सो दैट ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट कट डाउन हो जाए, या इसको हम कैसे कट डाउन करें. व्हाट आर ओवरग्राउंड वर्कर्स? सिविलियन पीपल हु आर सपोर्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन अ कवर्ड मैनर. सो ये आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं. ठीक है. Then facial recognition devices have been installed. Intelligence driven operations. ठीक है, Intel first approach. यहाँ पे एक टर्म है डॉक्टर मॉड्यूल. डॉक्टर मॉड्यूल हैज बीन बस्टेड. व्हाट इज दिस? सी मेडिकल प्रोफेशनल्स भी काफी टेररिज्म में इन्वॉल्व थे. इस चीज को भी लास्ट ईयर बस्ट किया गया है, डॉक्टर मॉड्यूल को. ठीक है. देन काउंटर ड्रोन सिस्टम्स. बट एट द सेम टाइम द एडिटोरियल रिकॉग्नाइजेस कि क्योंकि पीर पंजाल रेंज काफी डेंसली फॉरेस्टेड है, therefore we still have security gaps. Now your exercises कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल जाके चेक करो. एक चीज है इंटरनेशनल बॉर्डर, एक चीज है लाइन ऑफ कंट्रोल. What is the difference between them? Where do we call the line as international border and where do we call the line as line of control? Just go to Google Maps, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो. You can also run through certain आपका articles on this particular topic. Then there was this very small mention of the Holy See. नॉट अ प्रोबेबल क्वेश्चन, बस एक बार इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में आया हुआ था. सो विल जस्ट कवर थ्रू इट. होली सी क्या है? इट इज नॉट SCAC, इट इज SEE. ठीक है, SEE ये जो होली सी है, इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ चर्च एंड योर वैटिकन सिटी. वैटिकन सिटी वो प्लेस है जहां से आपकी क्रिश्चियनिटी के जो मेजर हेड है, पोप, ये आपके यहाँ पे सिट करते हैं. ठीक है. नाउ ये जो आपका होली सी है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉ. ये डिप्लोमेटिक आपकी रिलेशंस भी मेंटेन करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ. Plus, as per international law, it is recognized as a sovereign juridical entity. Again, पहलगाम continued. इसमें कुछ ज्यादा था नहीं. Most of it is जो हमने कल डिस्कस किया था. अब यहाँ पे एक चीज तो है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, which shows a muscular approach in India's security policy कि हम अभी if we are attacked then we basically retaliate. इसके अलावा he has focused on your economic implications of security challenges कि अगर security challenges आते हैं तो इसकी वजह से आपकी economic implications भी बहुत होते हैं. For example, अगर tulip festival है which is very famous in Jammu and Kashmir, it has seen tourists drop by 1/3. ठीक है, so इस तरह की activities. Apart from that, इंडिया ने जो अमेरिकन एप्पल्स हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज ईज कर दी है, ड्यू टू विच जो कश्मीर के एप्पल्स हैं दे आर सफरिंग. ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टूरिज्म से कश्मीर मेनलैंड के साथ कनेक्टेड रहता था. अब इसके कारण क्या हो जाएगा, इफ टूरिज्म इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली दिस विल लीड टू कश्मीर आइसोलेशन फ्रॉम द मेनलैंड. सो ये एक लाइन है विच कैन बी यूज्ड इन योर मेंस. द इकोनॉमिक कॉस्ट्स ऑफ इनसिक्योरिटी आर इमीडिएट एंड पेनफुल. नेक्स्ट है मणिपुर नीड्स हीलिंग. दिस वाज अगेन एन एडिटोरियल इन टुडेज एक्सप्रेस. सो सी, पूरे में आपको समझना क्या है, ये बेसिकली लास्ट ईयर के कन्फ्लिक्ट के परटेनिंग है. देयर आर सर्टेन ग्रुप्स इन मणिपुर, एथनिक ग्रुप्स हैं. वन ऑफ देम इज मेतीस. मेतीस आपके वैष्णवाइट्स है. दे आर हिंदू बाय रिलीजन. वैष्णविज्म का काफी इन्फ्लुएंस है मणिपुर में. एट द सेम टाइम वी हैव सर्टेन ट्राइब्स, फॉर एग्जांपल कुकी ट्राइब, जोड़ ट्राइब. अब ये मेनली आपकी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं. एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के कारण प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज के कारण देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्राइक व्हिच हैपेंड इन द प्रीसीडिंग इयर्स इन मणिपुर. व्हाई दिस आर्टिकल हैज कम अप नाउ, बिकॉज अभी एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई है ड्यू टू विच देयर इज अ चांस ऑफ हीलिंग, देयर इज अ चांस ऑफ रिपेयर एंड बेटर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिस पर्टिकुलर. आपके जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनमें रिलेशनशिप्स और ज्यादा बेटर होंगे. सो ये जो आपकी मेतीज हैं आपको पता होना चाहिए कहां पे है, दे आर लोकेटेड इन मणिपुर. सिमिलरली कुकी एंड जो ट्राइब्स. So the emphasis must now shift from containment to repair. Then this was covered yesterday. 3D अभी हम glass semiconductor use कर रहे हैं as compared to silicon. Why? Frequency drop नहीं होती है, thermal stability रहती है, current का flow अच्छा रहता है. Government is trying to tighten AI labeling rules for social media. इसमें क्या है? See, if you are playing a AI related or AI generated reel on your particular channel or whatever or a particular social media profile, तो आपको नीचे ये मेंशन करना है कि दिस इज एन AI generated content एंड ये आपको सिर्फ थोड़े ड्यूरेशन के लिए नहीं मेंशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर वीडियो इज एन आवर लॉन्ग वीडियो देन थ्रू आउट इट आवर यू हैव टू मेंशन on the bottom that this is an AI generated content. So ये इसमें mentioned है. At the same time एक जो आपका ग्रॉक है, ग्रॉक क्या है, एक्स या ट्विटर का AI सर्विस है. सो दिस हैज कम अंडर क्रिटिसिज्म. व्हाई? कि आप AI के डिसएडवांटेजेस के एग्जांपल में डाल सकते हो. सो इन केस ऑफ ग्रॉक, when the users were requesting Grok to generate women's images, so basically आपके revealing clothing पे women की images भी generate हो रही थी. This is one of the drawbacks and basically shadow on your dignity and privacy of women. तो इसको आप example में डाल सकते हो. So that's it for today. So कल के lesson में we'll catch up with tomorrow's newspaper and अगर आज की कोई news रहती है that will be taken up tomorrow. ठीक है? Thank you so much.